एक पथ पे आ जाओ। पथ मतलब रास्ता है। मैं ये नहीं कहता कि एक पथ पे आ जाओ, चाहे कर लो कोई भी सवारी, बस सत्य के रथ पे आ जाओ, बस सत्य के रथ पे आ जाओ। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होते हजारों सितारों से नहीं। मोहब्बत इस प्रोग्राम से शुरुआत हुई, हजारों प्रोग्राम से। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ एक सर्वधर्म सम्मेलन में आए थे सेक्रेड हार्ट चर्च में। आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो दिखाते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन मिलता है नया नया वीडियो बनाने में। Kindness and services to humanity. So it's time that we translate all of these values into actions that unite us rather than divide us. So here we go. We all have gathered here today to reinforce this phenomenon and to spread out in the world as a shining example of appreciating each other's unique religion, diversities and faith and our identities. We have planned a beautiful event curated by the volunteers here, Shali and the team. And let's begin this evening. So once again, sit back, relax and enjoy. But of course, don't just sit back, relax and enjoy. We would like each of you to participate, to be interactive and to be there and celebrate the moment. So I would like to now invite Shalini with her introductory speech. Thank you so much. I am truly honored to see each and every one of you here. And I extend my heartfelt gratitude for joining us in this celebration. On behalf of our church, I extend this gratitude to all of you. आज के इस सभा में हम स्वागत करते हैं लोकप्रिय श्रद्धेय स्वामी देवकानंद जी महाराज को, Honorable and distinguished Islam scholar and priest Ali Asghar Jamali ji, Shri Manpreet Singh Chadda ji, our very own parish priest Father Felix. We are still awaiting Param Pujniya Jain Acharya Shri Harikant Suri Maharaj ji. He'll be here any moment. An interreligious dialogue is a valuable treasure in itself because it brings together various leaders to discover that we do have many spiritual common grounds on which we could build a common dialogue on them. In all religions, there is always a holy law to follow. This law is meant to lead us in the righteous path of holiness, be it a Christian law, Muslim, Buddhist, Hindu, Jain, Sikh, Jewish or any other religion. But it is not just to listen to the law or read it. We all fast in our seasons to purify our mind and soul, at the same time making reparations for our sins. We all purify ourselves in the manner we were instructed. We all meditate to reach higher levels of spirituality according to our spiritual teachings. We believe in righteousness and justice and in the virtues. In the Christian religion, we respect the freedom of people, and the church rejects
rejects the use of unethical means to gain conversions. Therefore, our meetings should be genuine with the aim to promote understanding and respect for each other's religions, traditions, and refrain from criticizing them. With this, we will gain reconciliation and peace. Many of us have sometimes been unethical and lacking respect in our behavior towards each other, disrespectful of our beliefs and traditions, failing to speak about reconciliation, failing to admit our failures even because of fear or pride. Perhaps we have somewhat failed to speak up about dictatorial relationships and leadership, which are causes of extreme violence and sufferings in our world, about poverty and injustice. To resolve conflicts within and without our communities, we have to educate our people and instill in them a divine spirituality based on love and peace. For these reasons, the communities are divided and division does not come from God. स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है और उन्होंने लोगों को निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। The spiritual leader of the Bohra Muslim community, His Holiness Dr. Mufaddal Saifuddin, he teaches them the Islamic values of peace and patriotism while emphasizing the need for every member of the Bohra community to be productive citizens who make a positive contribution to the social fabric of their respective countries. हम स्वागत करते हैं परम पूजनीय जैन आचार्य श्री हरिकांत सूरी महाराज जी का। We are here today, united in light, to celebrate faith together. As a gesture of thanksgiving and appreciation for all that you all do. I now call upon the Sacred Heart Parish Priest, Father Felix, to honor each one of you with a token of love. अब हमारे मुख्य पादरी रेवरेंड फादर फेलिक्स आगे आकर हमारे बीच उपस्थित आप धर्मचारियों का स्वागत सम्मान करेंगे। परम पूज्य जैन आचार्य श्री हरिकांत सूरी महाराज जी। लोकप्रिय श्रद्धेय स्वामी देवकांत आनंद जी महाराज। Honorable and distinguished Islam scholar and priest Ali Asghar Jamali ji.
Singh Chatterjee. Thank you, Father Felix. We now have the lighting of the lamp by Father Felix and reps of our different spiritual leaders. मैं तहे दिल से आप सभी धर्मगुरुओं का स्वागत करना चाहता हूँ कि जो दिव्य ज्योति का त्यौहार हम आज मना रहे हैं उस दिव्य ज्योति को अपने कर कमलों से जलाने की कृपा करें। I request all the representative of different religions to come and light the lamp. And be seated. Isn't this such a beautiful gesture of spreading the light around? Okay, so now we're going to do something more beautiful. Our volunteers will be distributing candles to each of our members present here. And we would be lighting these candles and having an interactive chat. So please make the best of this moment and try to get to know your brothers and sisters. We would like to make this as interesting as possible. So we would like to request the volunteers to kindly distribute the tea light candles. अभी जो हमारे धर्म गुरुओं ने ज्योति जलाई है वो चिन्ह के स्वरूप एज अ सिंबल हम सब लोग उस ज्योति को जला के एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे और ये संदेश देना चाहेंगे कि हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं। ईश्वर ने हम सबों को ऐसी ज्योति दी है जो डिवाइन पावर है, जो अदृश्य शक्ति है, जो हमें संभालती है, हमें चलाती है। उसने हमें ऐसी शक्ति दे रखी है कि हम दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। यही प्रकाश हम एक दूसरों के साथ बांटना चाहिए। नीचे एक स्विच है, आप जलाएंगे तो हमारी दिवाली आज होगी। Okay, so we want our brothers and sisters to अभी बस हम 2 मिनट के लिए जो ज्योति हमारे हाथों में है, the light which we are having in our hands, we will share with each other. We will give our light to them and take their light to us. It is a symbol that we are sharing the divine light which is given to us in a different form. The light of truth, the light of forgiveness, the light of love,
please get up and small gesture, please we get can leave our places and go. सब एक दूसरे हमारे जो धर्मगुरु हमारे सामने विराजमान हैं, कोई वो भेदभाव नहीं, कुछ अपने नहीं, बहुमूल्य सब एक समय साथ को में हमारे बीच में बिताने के लिए आए हैं। उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। हम आभार प्रकट करते हैं अपने धर्मगुरुओं का जो हमारे बीच में है। हम अपनी जगह पे बैठ जाए जितनी जल्दी हो सके। Request everyone to kindly be seated. Please sit down. बीच में भाई बहन हैं, सर्व सम्मानित हमारे धर्मगुरु जी। I just want to tell you that people, those who have gathered here, they are not all Christians. They are from all the communities. Some are Muslims, some are Sikhs, some are Christians, some are Hindus, living around our areas in this. And आज हम जो ये त्योहार मना रहे हैं, ये एक साथ मिलकर हम जो एक दूसरे से प्यार बांट रहे हैं, ये ईश्वर की लाइट, जिसको सेलिब्रेटिंग फेथ टुगेदर यूनाइटेड इन लाइट, दिव्य ज्योति में, दिव्य प्रकाश में एक होकर हम उस असीम शक्ति को याद कर रहे हैं। और उसके उपलक्ष्य में मैं जो हमारे यहाँ के मुख्य पुरोहित हैं, फादर फेलिक्स डिसूजा, मैं आपसे 2 शब्दों में जानना चाहूँगा, 1 मिनट में, कि ये पूरा जो आपने ऑर्गेनाइज करवाया है, the organization of this particular program today, what is your purpose behind this? Thank you, Ajit. Respected members of the days. ये जो प्रोग्राम आज हमने रखा है, उसका 2 कारण है फादर जी। एक तो है कि ये त्योहार है दिवाली की, इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो इस त्योहार में द बेस्ट थिंग वी कैन डू is to share our light with others. हमारा जो दिया या जो रोशनी है वो दूसरों के साथ हम बांटे तो हम साथ रह सकते हैं। दूसरे कारण which is most important, the second reason is most important, हम देखते हैं कि धर्म के नाम से झगड़ा हो रहा है, संसार में जो कुछ दुश्मनी है, क्रोध है, ये सब मिटाना चाहिए। ये तो सभी लोगों का एक डिजायर है, आशा है। तो हमारा मत ये है कि किसी भी धर्म के हम क्यों न हो, किसी भी धर्म हम क्यों न हो, भगवान है हमारे साथ हमेशा, हमारे साथ चल रहे सुख में दुख में। और भगवान का जो घोषणा है कि हम एकता से जिए। जैसे कहते हैं कि गुलाब की फूलदस्ता में, गुलाब की फूलदस्ता में फूल बन के रहना, कांटे बन के नहीं। तो इसी तरह हम इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, रखा है, क्योंकि हम सब साथ मिलके जो प्यार की घोषणा है वो हम सभी को देंगे। और जो हमारे लीडर्स है यहाँ पे, हमारी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम आगे बढ़े और लोगों को सिखाए कि हम we must live with harmony, with peace and with love. आप कहेंगे कि इस छोटे प्रोग्राम से क्या होता है, लेकिन छोटे प्रोग्राम से बड़े इच्छाएं होते हैं। तो ये एक शुरुआत है
और इसी तरह से सब लोग शुरुआत करेंगे, एक एक दिया जलेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेंगे। प्यार से बहुत बहुत धन्यवाद फादर, थैंक यू सो मच। और यस, इसी कड़ी में जैसे फादर ने बताया है कि लाइट जो एक दिवाली के रूप में हम सभी मनाते हैं, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सारे भाई बहन मिलकर एक साथ काम करें। किसी ने कहा है कि ईश्वर का कोई धर्म नहीं होता। गॉड हैज नो रिलीजन, अल्लाह हैज नो रिलीजन, खुदा हैज नो रिलीजन। God is beyond religion. If we really want to connect ourselves to God, we need to go above our religion. और इसीलिए चूंकि ज्योति का पर्व है, हमारे बीच में है स्वामी देवकांत्यानंद जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अपने लोगों के बिहाफ पे कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं और ज्योति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। Thank you, Father Ajit. My respect to Father Felix and respected members of our society and representing different faiths. So, see, this is how I want to put it. So, we see these two terms very distinctly. And Hinduism has this beautiful concept. They want to segregate these two things. One thing they call it as Shruti, which is cardinal principles. And these principles are not subject to any times, any place, or any people. So it pertains to entity which lies beyond it. Let us call it a truth, the ultimate truth. So the word ultimate, when we use, they mean to say there is something what we call as apparent truth. Apparent truth is what we know as generally our reality, our world. And they say this is something that truth lies beyond the periphery of your senses, where your intellect cannot reach. Avam manasa gochar, this is the language is used. That your speech cannot read it. So Sri Ramakrishna used to put it very beautifully. He was a village person, almost 4 standard pass. Her cat is to stutter also. So and he has a childlike simplicity. So he used to put it in a very candid way. He said that Brahman alone is the thing which is never defied. So now if we touch something by our mouth, then it is defied. It is become impure. So it cannot be offered to some other person or venerated person or even to God. Forget about God. So we cannot offer it, so it is defied. So, because why that Brahman is only pure and it is never defied? Because you cannot express that thing in a word. Word will fail to capture that reality. So there is a reality there, that's why that ultimate truth lying beyond the periphery of mind and speech, your senses, your reason, etc., etc. And then this is the reality. So how we conduct ourselves, how we live our life, this part is being called as dharma. And then as that person graduates, matures, and seeks to reach out that reality which lies beyond this realm, that truth which transcends everything, that Brahman literally means infinite. Brahman literally means infinite, which is the greatest. The greatest means there is nothing greater than that. What is that? It is not a person, but a principle. Anyhow, so the body of knowledge which deals with the principle, that is called as Shruti. It is unchanging. It doesn't tell you what you should eat, how you should live, whom to marry, how to die, how to do various businesses of your world. That whole responsibility is of the other body called as dharma or religion, which takes care, which dictates people, which directs that you should move this way, that so that if you live your life in this way, so it will help you or it will facilitate to reach to that ultimate goal. Ultimate fulfillment will come. You will be able to prepare yourself through the journey of your life. Now dharma and other thing is called adhyatma or paramatma. Now in this dharma, as we live, because
regime, for the word, for material, everything. So it doesn't try to snub it down. What does it try to do? It guides it. It try to moderate it. It try to give it a higher dimension. It try to bring some sense of restraint, some restraint, so that you do not become an animal. Because if you are if we are left to ourselves, we are tame to. That's who we are. So, and this religion, this is what we do, how we do in the places, in the times, in the resources, and a different kind of situation might arise, socio-economical, political, and that's how our cultures and civilizations are formed. That's why our stories and legends are formed. That's why there are great human beings who show exemplary character, and we always want events. Human beings, we are sadhus, we are kind of people, the monks, who renounce everything. They are not much fond of events, but we very much know that householder people, they very much like events. So in Hinduism we have calendar. Every now and then there is some festival. ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होली आ गई, ये आ गया, एकादशी, चतुर्थी, ऐसा करो, वैसा करो, ये खाओ, वैसा करो, इस भगवान को पानी चढ़ाओ, इस भगवान को मतलब दूध चढ़ाओ, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, लोगों को एंटरटेनमेंट लगा हुआ है. So what happens? It makes their life more entertaining. They like to adapt it. It becomes easier for them. With these kinds of rituals, these beliefs, they try to absorb the ideas slowly behind those symbolisms. And to mark the event, so about Diwali. So many times what we see, Diwali like 5 days. But if we say वो वसुबारस है, फिर उसके बाद धनत्रयोदशी है, फिर लक्ष्मी पूजन है, फिर नरक चतुर्दशी है, फिर मतलब भाई दूज है. If we see, there are 5 distinct instances even according to the legends of Puranas. नरक चतुर्दशी के दिन क्या, वो नरकासुर का वध किया. लक्ष्मी पूजन के दिन ऐसा, लक्ष्मी व भाई दूज के दिन क्या है, तो यमराज ने उसके बहन को ये दिया, प्रॉमिस किया कि आज के दिन मैं किसी का जान नहीं लूंगा, बट मिस योर ब्लेसिंग इज देयर, सिस्टर्स ब्लेसिंग इज देयर. सो वेरी नाइस ऑकेजन. लक्ष्मी पूजन है, फिर धनत्रयोदशी, धन की प्राप्ति हो, तो कोई नहीं चाहता, तो बोले लक्ष्मी जी का पूजन करो ठीक से. सो प्रॉस्पेरिटी शुड बी देयर. And it also marked associated that Sri Ram came after this victory in this Sri Lanka. He came Rama, and that day, after so many 14 years, he returned back. He was beloved prince, beloved king, and his character was considered as an ideal for the society. And with that, this light, idea of light, what we see, and over the period of time, what my good idea is, it gathers lot of layers, lot of importance. It gets attaches along the way. So it's definitely Diwali, this festival of light, that light which we want to lit up in the heart of every of the individuals. That light, that is beautiful prayer in the Upanishad. Asato ma samudamaya, tamaso ma jyotirgamaya. So God divine, lead me from what is unreal to real. Lead me from darkness to light. Lead me from death to immortality. Oh, peace, peace. बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का. शिक्षा के लिए जहाँ आपने हमें बताया कि हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मानव के रूप में, अगर हम उसे ईमानदारी से निभाते हैं वही हमारा धर्म है. और उस धर्म के द्वारा हम उस असीम शक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं जो हमसे बहुत परे है, दुनिया की चीजों से बहुत परे है. धन्यवाद स्वामी जी. और अभी मैं अपने जैनाचार्य जी से एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा. हम अध्यात्म में बढ़ना चाहते हैं, हम सब लोग अध्यात्म की बात करते हैं, रिलीजन में भी हम अध्यात्म की बात करते हैं, स्पीक अबाउट स्पिरिचुअलिटी. तो हम अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या बेसिक हो सकता है हमारे जैन धर्म के हिसाब से? आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को नमस्कार. भगवान ने सबको एक दूसरे से जुड़ने के लिए कहा है, और धर्म का मतलब
मतलब ही क्या है, जो जोड़ता है वो धर्म है, जो तोड़ता है वो धर्म कभी बनता नहीं है। और हम जुड़े कैसे? तो जुड़ने के लिए महापुरुषों ने एक एक अपने विचार रखे जिसके कारण से हम जुड़ सके। और धर्म का काम ही यही है कि हम सब जुड़े। दिया अपने को एक संदेश देता है, प्रकाश तो अपना आत्मा भी एक दिए की तरह है, प्रकाश करता है। एक दिया जलाना हो तो उसके लिए पात्र चाहिए, स्नेह यानी उसके अंदर तेल या घी चाहिए, उसके अंदर बाती चाहिए, फिर उसके अंदर वो ज्योति प्रकट होती है। तो ज्योति का काम है ऊपर की तरफ जाना। तो अपना वो ज्योति जो है वो आत्मा का प्रतीक है, उसी को अपने को पकड़ना है, उसी को अपने को देखना है। तो वो ज्योति कब तक जलती है? जो उसके अंदर पात्र के अंदर स्नेह हो तो अपने एक दूसरे के प्रति स्नेह हो तो अपनी आत्मा की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहेगी। और वो स्नेह को कोई इकट्ठा करने के लिए चाहिए तो वो चाहिए एक पात्र चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए अपने सबके अंदर एक पात्रता आ जाए, पात्रता के अंदर स्नेह आ जाए। स्नेह के बाद में जो समर्पण रहता है, वो जो बाती है वो समर्पण का प्रतीक है। और उसको प्रज्वलित कौन कर सकता है? जिसके अंदर सत्व है, जिसके अंदर सत्व है वो उसको प्रज्वलित कर सकता है। तो ऐसे ही दिया अपने को ये संदेश देता है, यही अध्यात्म भी यही कहता है। और धर्म जो अपने को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। किसको धारण करता है? दुर्गति में के अंदर गिरते हुए जीव को जो धारण करता है, दुर्गति के तरफ जाने नहीं देता है, उसको धारण करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो वो धारण करके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? कैसे वो धारण करता है? आत्मा को कोई पकड़ सकता है? आत्मा तो कैसे है? अरूपी बताइए, अरूपी है, निरंजन है, निराकार है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। तो कैसे धारण करेंगे, कैसे पकड़ेंगे? तो महापुरुषों ने बताया है कि इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करो। इच्छाएं कितनी है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं अनंत इच्छा है। एक इच्छा पूरी हुई ना हुई तो दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हुई ना हुई तो तीसरी इच्छा। इसका कोई अंत नहीं है। जैसे आकाश का अंत नहीं है, वैसे ही इच्छाओं का भी अंत नहीं है। तो इच्छाओं के ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करें, यही अध्यात्म अपने को सिखाता है। और इच्छाओं के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? इच्छाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक इच्छा पूरी हो गई तो और लोभ बढ़ेगा और राग बढ़ेगा, और राग के बीच में कोई रुकावट आई तो द्वेष बढ़ेगा। तो राग, द्वेष, लोभ ये क्या है? हम क्या करते हैं? अपने स्नेह को दूर करते हैं और ज्योति बराबर प्रज्वलित नहीं हो पाती। और इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। तो ये भी अपना सिलसिला चलता रहता है, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ। और इसमें से बाहर निकलना है तो हमें इच्छाओं के ऊपर ही जो विजय प्राप्त कर ले तो वही वास्तव में परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। और जो इच्छाओं को विजय का कब प्राप्त कर पाएगा? इच्छाओं को विजय प्राप्त करना है तो वो अपने के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा कि यही एकदम मार्ग बराबर है। और विज्ञान का काम भी यही है, विज्ञान का काम भी यही है कि हम अपने को खोजें। जब तक हम अपने को दुनिया के अंदर सब कुछ खोजने के अंदर हम मशगूल हो जाते हैं कि इसको खोजे उसको पाए, लेकिन वास्तव में अपना आत्मा ही क्या हो गया है? खो गया है। जो आत्मा को खोज लिया तो उसने सब कुछ खोज लिया। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। आचार्य भगत आ नहीं सके, उन्होंने मुझे भेजा। अच्छा लगा, सब एक साथ में बैठते हैं, एक दूसरे के विचार प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, तो और ही अच्छा आनंद आता है। तो हमें भी बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी हम धन्यवाद के साथ हमारे स्वामी देवकांतानंद जी को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, बहुत मुश्किल से समय निकाल के आए थे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं सर। और सर आपको भी हम 5 मिनट में छोड़ देंगे, आपको भी जल्दीबाजी 5 मिनट जी, बस 2 मिनट इससे आप अभी देखो Okay, then again, all of you, all the best. And best wishes to all of you. Thank you very much. May God bless you all. Thank you
so much, Swamiji, for your presence. अभी हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बैठ जाइए जी। अभी हमारे बीच में है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे जनाब अमित साहब शेख अली असगर जमान जी हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं सर, धन्यवाद करते हैं। नमाज का टाइम है अभी, और इसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम है इनकी खुद की पैरिश में। जैसे हमारे पैरिश प्रिस्ट है, वैसे ही असगर साहब भी पैरिश प्रिस्ट है अपने जगह पे, अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं। हम 2 मिनट में बस सर आपसे ये जानना चाहते हैं, अगर हमारे लोगों को आप बताएं कि आज हम भाईचारे की भावना से रहते हैं, रहना चाहते हैं, हमारा माहौल जो है सबको पता है। ऐसा कौन सा दृष्टिकोण हमारे दिल में होना चाहिए? What perception should we have to live together as brothers and sisters? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for inviting us. जो भी सवाल किया है फादर जी ने, पहले तो सब जो एस्टीम लीडर्स हैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ, और आई एम ब्लेस्ड टू बी विद यू इन दिस ओकेजन। सवाल तो बहुत बड़ा भारी किया है, इसके लिए तो किताबों लिख सकते हैं, मगर एक सिंगल वर्ड में अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आई विल से इन अरबिक एंड आई विल ट्रांसलेट। उन्होंने फरमाया है कि अल खल्क़ु यारुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह अनफ़अहुल इयालिही। इट मींस कि द होल यूनिवर्स इज लाइक ए फैमिली एंड अल्लाह लव्स द वन हु इज बेनिफिशियल टू हिज फैमिली। अल्लाह को वही पसंद है कि जो पूरा यूनिवर्स एक फैमिली है, द होल यूनिवर्स इज फैमिली, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर। तो अल्लाह को पसंद वही है कि जो उसकी फैमिली को ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, बेनिफिशियल टू द फैमिली। तो यही संदेश से प्रॉफेट मोहम्मद ने दिया है। और इस्लाम का जो मतलब होता है सलामती का होता है, इस्लाम का लफ्ज़ी सलामती है। और आज जो भी हालात है दुनिया के अंदर, बट आई विश कि ऑल द मुस्लिम्स एंड ऑल द वर्ल्ड कम ऑन वन टेबल एंड भी आज जो आपने किया ये दीप जलाया है अमन का, पीस का, इंशाअल्लाह आपकी जो उम्मीदें हैं और जो चाहते हैं वो अचीव हो, और अपन सब एक साथ मिलके मैं ये खाल में रहता हूँ, सामने हमारी मस्जिद है, छोटी सी कम्युनिटी दाऊदी बोरा। आई बिलोंग टू दाऊदी बोरा कम्युनिटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हिज ऑर्डिनेंस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन हमारे धर्म गुरु है, मतलब हमारा उनको मानते हैं, और वो तो हमें ऐसा ही सिखाते हैं। हमारी कौम में सब बिजनेसमैन से एजुकेटेड लोग हैं और मेरी अमन पसंद लोग हैं। बस अभी नमाज का टाइम हो रहा है, आई विल लीव। बस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच। स्वामी जी ने कहा था कि जो धारण किया जाए वो धर्म है, धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है, नफरत धारण करने की चीज नहीं है। वही अली असगर साहब जी ने कहा है, जैसे एक सूफी संत है रूमी, वो कहते हैं कि हर धर्म में प्यार मिलता है, हर धर्म में प्यार की बात होती है, लेकिन प्यार का कोई धर्म नहीं है, प्यार का कोई भी धर्म नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अली असगर जी हमें ये संदेश देने के लिए। आप हमारे बीच आए, हम लोग खड़े होकर धन्यवाद के साथ हमारे बीच में हमारे जो जैनाचार्य जी हैं, उनका जो संदेश था वो मैं फिर से कहना चाहूंगा, वो बहुत प्यारी चीज है। अगर हम सभी उस चीज को धारण कर लें तो जीवन बदल जाएगा। जैन धर्म का एक अनेकांतवाद है। अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे जैन धर्म में तो उसमें कहते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब है कि एक सत्य को जानने के बहुत सारे तरीके हैं एक सत्य को जानने के। उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें सत्य को, अपने अंदर जो सत्य है उसको जानना जरूरी है। और उसी को संस्कृत में कहते हैं कि धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। और नफरत धारण करने की चीज नहीं है, लोभ धारण करने की चीज नहीं है, घृणा धारण करने की चीज नहीं है, प्रेम धारण करने की चीज है। तभी हम अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे। स्वामी जी, हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, आप हमारे बीच में आए। प्रभु आपको आशीर्वाद करें।
आइए हम खड़े होकर विदा करें अपने गुरु जी। Thank you so much for your presence. वो एक कहावत है, भारत में बढ़िया चलता है वो कहावत। कहते हैं कि जब सब लोग डर के पीछे हट जाते हैं तो सरदार खड़ा होता है। और गुरु आई थिंक गुरु जी की एक बात है कि 1 लाखों पे भारी ऐसे करके कुछ डायलॉग है। 1.25 लाख से 1 लाख मतलब 1.25 लाख लोगों के खिलाफ एक सरदार लड़ाई करके जीत सकता है ना। और हमारे बीच में हम धन्य हैं कि हमारे बीच में सरदार जो है जो खार गुरुद्वारे से संबंध रखते हैं। हम आपसे एक छोटा सा संदेश चाहते हैं सर प्रैक्टिकल लाइफ में, और वो ये होगा कि समाज में ज्योति हम जलाने की बात करते हैं, शांति रखने की बात करते हैं, लेकिन सच में अगर समाज में शांति स्थापित करना है तो हमें क्या करना चाहिए? सर हमारे गुरु नानक देव जी बोलते हैं एक गॉड इज वन, नानक नाम चंदी के नाम तेरे हमेशा बढ़ता रहा। गॉड ब्लेस एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, लेट इट बी ऑफ एनी रिलीजन और एनी रिलीजन। दिस इज अ रिलीजन, दिस इज व्हाट गुरु नानक देव जी taught us, that we have to look at every person in the same manner, not differentiate anyone. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद। और फिर सर 2 लाइन बट बहुत बड़ी लाइन, और ये सर ने जो बोला है वो सिर्फ बोलते नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी जो सिख कम्युनिटी है इस भारतवर्ष में या फिर विदेशों में भी क्या करते हैं, तो मैंने जो अनुभव किया है, दिल्ली में रहता हूँ मैं और वहाँ पे एक गुरुद्वारा है हमारे चर्च के सामने, बंगला साहिब गुरुद्वारा। वहाँ पे रोज कम से कम 10 से 15 हजार लोग जो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी कास्ट के हो, वो आते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं और शांति से मुस्कुराहट लेकर बाहर जाते हैं। ये सेवा हमारे जो सिख समुदाय के लोग करते हैं, हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो शांति बांटने का इससे बेहतर आइडिया नहीं हो सकता कि अगर कोई भूखा है तो उसे खाना। हमारे प्रभु यीशु मसीह बाइबल अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुमको ईश्वर को जानना है, ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर को पहचानना है, तो भूखे को खाना खिलाओ। अगर तुम भूखे को खाना खिलाते हो तो मुझे खाना खिलाते हो, अगर तुम प्यासे को पानी पिलाते हो तो मुझे पिलाते हो। और हमारे सिखिज्म में ये देखने को मिलता है। हम सभी अपने जी I would like to inform you, in Bangla Sahib Gurudwara, there is a room for 1,000 beds. Any person of any religion, if he's got kidney problem, the dialysis is free over there for just ₹1. Yes, I am the testimony of that, witness of that. I have seen and I have also recommended so many people to that hospital. We can clap for our और एक और खुशी की बात है, एक और खुशी की बात है कि हमारे श्री मनप्रीत सर जो है वो हमारे इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, सेक्रेड हार्ट स्कूल से। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और गर्व की बात इसलिए है, इसको लाइटर नोट पे लेना, आप सीरियस नहीं लेना। लोग कहते हैं कि ईसाई लोग कन्वर्शन करते हैं, अगर कन्वर्शन होता तो सर जो है यहाँ पे नहीं होते, है कि नहीं? तो वो अलग बात है, मजाक इसको सीरियस नहीं लेना। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर, आप हमारे बीच में आए हैं और आपने एक सुंदर शब्दों द्वारा हमारे दिल को रिझाया है। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Shri Manpreet sir, for your presence this evening. हम लोग खड़े होकर तालियां बजाकर
जैसे अभी मैं लास्ट लाइन जाने से पहले ये कहना चाहूँगा तो आप इतना समझ सकते हो कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ। ठीक है, किसी ने कहा है, मैंने लिखा था 2 लाइन कभी कि मैं ये नहीं कहता कि एक पथ पे आ जाओ, पथ मतलब रास्ता है। मैं ये नहीं कहता कि एक पथ पे आ जाओ, चाहे कर लो कोई भी सवारी, बस सत्य के रथ पे आ जाओ, बस सत्य के रथ पे आ जाओ। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होते हजारों सितारों से नहीं। मोहब्बत इस प्रोग्राम से शुरुआत हुई, हजारों प्रोग्राम से नहीं। Thank you so much, your father. Be explained by each of the spiritual leaders present here. How have we been so far? How are we enjoying this event? Everyone is very serious and sitting tight, right? You warmed your seats enough. You got enough of information from each of our religious leaders, right? Okay. So all talk. आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन मिलता है नया नया वीडियो बनाने में।